امریکہ میں پولیس کے خلاف احتجاج میں جنوبی ایشیائی ڈاکٹرز بھی شامل. ہم ڈاکٹرز ہیں اور اگر ڈاکٹرز ہیں ہمارے لیے سب کے لیے کنسیڈریشن ہونی چاہیے, ویدر یہ جارج فلوئڈ ہو, ویدر بلیکس ہوں, وائٹس ہوں, براؤن ہو. پیرا گلائڈنگ کے لیے مشہور بھارتی گاؤں, کرونا وائرس نے وہاں سیاحت کو کیسے متاثر کیا. اور آپ کو دکھائیں گے 110 سالہ فلسطینی بزرگ کی کہانی جو 72 سالوں سے پناہ گزین کیمپوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں. وائس آف امریکہ نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں فائزہ بخاری. امریکہ سمیت دنیا بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والے شٹ ڈاؤن میں نرمی کی جا رہی ہے, لیکن ایسا کرنے سے اکثر جگہوں پر کرونا کے کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے, جس نے ماہرین کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ وائرس سے بچاؤ کے تمام اقدامات کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی کو معمول پر واپس کیسے لایا جائے. اس سال نومبر میں امریکہ میں صدارتی انتخابات بھی ہونے ہیں. صدر ٹرمپ نے ہفتے کو ریاست اوکلاہوما میں ایک انتخابی ریلی کا اعلان کیا ہے, جس پر طبی ماہرین تشویش میں مبتلا ہیں, کیونکہ یہ ریلی ٹولسا کے ایک انڈور ارینا میں منعقد کی جا رہی ہے, جہاں 20,000 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے. اس ریلی سے قبل ہی ریاست اوکلاہوما میں کووڈ-19 کے کیسوں میں اچانک اضافہ ریکارڈ کیا گیا. دوسری جانب صدر ٹرمپ کی کرونا ٹاسک فورس میں شامل ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ اگر انہیں دعوت دی جاتی تو وہ بھی اس ریلی میں شرکت نہ کرتے. جنوبی ایشیا میں بھی وائرس کے کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. اب ذکر کرتے ہیں بھارت کے 2 گاؤں کا جو کوہ ہمالیہ کے دامن میں واقع ہیں. انہیں پیرا گلائڈنگ کے لیے بہترین جگہ کا درجہ ملا تو یہاں سیاحوں کا رش بڑھنے لگا اور مقامی افراد روایتی پیشے چھوڑ کر چھوٹے ہوٹلز بنانے لگے. لیکن کورونا وائرس کی وبا نے سیاحت سے منسلک ان نئے کاروباروں کو بری طرح متاثر کیا ہے اور ان سے جڑے افراد کے روزگار میں بھی رکاوٹ پیدا کر دی ہے. اس صورتحال پر ایک نظر ڈالنے کے لیے دیکھیے یہ رپورٹ. 4 سال پہلے جب شمالی بھارت کے علاقوں بیر اور بلنگ کے آسمانوں میں پیراگلائڈرز نے اڑان بھرنی شروع کی تو کرن ویر نے 12 کمروں پر مشتمل ایک عمارت کرائے پر لے لی تاکہ اس کھیل کے شوقین لوگوں کو رہائش دے سکیں. پیراگلائڈنگ کی وجہ سے کوہ ہمالیہ کے یہ 2 دیہات جب سیاحوں میں مقبول ہوئے تو لوگ یہاں سائیکلنگ, پہاڑوں پر چڑھنے اور بدھ مت کی عبادت گاہیں دیکھنے بھی آنے لگے. دنیا بھر سے پائلٹس یہاں آتے ہیں. سال کے شروع میں ہی وہ 1 یا 2 مہینے کے لیے کمرے بک کر لیتے ہیں. ہم ان سے اور مقامی سیاحوں سے بہت پیسہ کماتے ہیں. لیکن جب کورونا وائرس کی وبا نے سب کچھ بند کر دیا تو کرن ویر کو بھی اپنا ہوٹل مجبوراً بند کرنا پڑا. ان دیہاتوں میں وہ اکیلے نہیں ہیں جنہوں نے میزبانی کا یہ کاروبار بند کیا ہے. اگرچہ ان علاقوں میں وبا نہیں ہے لیکن پھر بھی ہوٹل مالکان کو خدشہ ہے کہ سیاح جلد یہاں کا رخ نہیں کریں گے کیونکہ بھارت اس وبا سے بری طرح متاثر ہونے والے ملکوں میں شامل ہے. چندر موہن نے اپنی جائیداد 2 سال پہلے قرض لے کر بنائی تھی جو اب ایک بہت بڑا بوجھ بن گئی ہے. جس حساب سے کام چل رہا تھا بس آگے ہوگا نہیں, لوگوں کی مینٹلٹی چینج ہو جائے گی. جیسے لوگ سوچ رہے تھے کہ اس لیول کا کام چلا گیا بس اب ہوگا نہیں, بہت بڑا گیپ پڑ گیا نا 1 سال کا. کووڈ-19 کے بعد محدود وسائل کی وجہ سے ان جائیدادوں کے مالکان کے لیے بڑے بڑے ہوٹلز کی طرح لوگوں کو آسائشیں دینا مشکل ہو رہا ہے. اس کے لیے مجھے مختلف آلات وغیرہ پر پیسہ لگانا پڑے گا تاکہ میں اس بات کو یقینی بنا سکوں کہ میرے ہوٹل میں داخل ہونے والے کو کوئی بیماری نہیں ہے. مجھے اپنے مہمانوں سے آمنے سامنے ملنا ہوتا ہے. میں دیوار کے پیچھے جا کر ان سے بات نہیں کر سکتا. نریش ٹھاکر نامی ہوٹل کے مالک کو بھی یہی چیلنج درپیش ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کرتے ہیں, کچھ اور بات کرتے ہیں. وی ڈونٹ نو ہم کیسے کریں گے, ریئیکٹ کریں گے. یہ کہتے ہیں ریسٹورینٹ چلاؤ, ٹھیک ہے میں ریسٹورینٹ چلاتا ہوں لیکن کھلاؤں گا کس کو؟ ٹیک اوے لے جاؤ. یہ کہتے ہیں کہ ٹیک اوے اوپن ہے, پر ٹیک اوے کس کو دیں؟ دور دراز کے ان علاقوں میں ایک وقت تھا جب ہوٹلز اور کیفے وغیرہ نے روایتی کھیتی باڑی سے ہٹ کر جدید حالات کے مطابق ملازمتوں کے مواقع فراہم کیے. لیکن وبا کے بعد ایسے علاقوں میں بھی برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی نہیں پہنچا. یہاں کچھ بھی نہیں بچے گا. ہوٹل کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوں, اب تو نہیں ہو پائے گا, ہوٹل کا نہیں ہو پائے گا. پیراگلائڈرز کے توسط سے ان دیہاتیوں کے لیے ابھرنے والی امید اب ٹوٹتی نظر آ رہی ہے. انجنا پسریچا کے ساتھ نخبت ملک, وائس آف امریکہ.
कोरोना वायरस की वबा से लाखों उम्र रसीदा, माजूर और ज़रूरतमंद अफराद भी मुतासिर हुए हैं, जो खुराक की फराहमी के लिए दीगर ज़राए पर इन्हिसार करते थे। शटडाउन की वजह से रेस्टोरेंट्स को भी मजबूरन कारोबार बंद या महदूद करके अपने बेशतर मुलाजिमीन को काम से फारिग करना पड़ा। ऐसे में रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन फ्रांसिस्को के एक बेकर ने अनोखी तरकीब सोची, जिसके जरिए वो रेस्टोरेंट्स की मदद कर रहा है ताकि वो ज़रूरतमंदों की खुराक का बंदोबस्त जारी रख सकें। हैन ट्रॉन्ग ने वियतनाम में अपने वालिदैन की रेस्टोरेंट की तर्ज पर कैलिफोर्निया में नूडल गर्ल नामी अपने कारोबार का आगाज किया। I came here and I really miss the taste. जब मैं यहाँ आई तो मुझे मेरी वालदा के हाथ का जायका बहुत याद आता था, क्योंकि मुझे किसी भी रेस्टोरेंट्स में वैसा खाना या जायका नहीं मिलता था। और फिर वबा फूट पड़ी, जिससे वो भी मुतासिर हुई और कैलिफोर्निया में दीगर रेस्टोरेंट्स के साथ साथ उन्हें भी नूडल गर्ल बंद करना पड़ा। इस बेकरी के मालिक को भी इसी सूरत हाल से गुजरना पड़ा। मैं जानती थी कि ये सिलसिला अब ऐसे जारी नहीं रह सकता। अगर हमने फौरी तौर पर मुलाजिमीन को काम से ना निकाला तो हम दिवालिया हो जाएंगे। लिनोरा ने फौरी कदम उठाते हुए अपने एक दोस्त की मदद से SF न्यू डील नामी एक नई तंजीम का आगाज किया। ये तंजीम नूडल गर्ल जैसे कारोबारों को रकम फराहम करती है ताकि वो जरूरतमंदों के लिए खुराक तैयार कर सकें। जरूरतमंदों तक खुराक पहुंचाने का काम रजाकार कर रहे हैं। हम ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि उन अफराद को खुराक पहुंचा सकें जिनकी मदद का सिलसिला वबा की वजह से मुनक़ता हुआ और जिनकी खुराक का कोई और वसीला नहीं है। रजाकारों की मदद से SF न्यू डील दो जरूरतमंद कम्युनिटीज यानी घरों में महदूद अफराद और मुश्किल की शिकार रेस्टोरेंट्स के मुलाजमीन के दरमियान राब्ते जैसा अहम काम करती है। Buenas, es su comida. Okay, bye. Thank you. Thank you so much. God bless you. Okay, bye. During these times, इस मुश्किल वक्त से निपटने का हल मैंने दूसरों की मदद में ढूंढा है। मार्च से इस गैर मुनाफा बख्श तंजीम ने 80 रेस्टोरेंट्स के साथ मिलकर हजारों अफराद को खाना फराहम किया है। This program it helping me to pay for. इस प्रोग्राम ने रेस्टोरेंट्स को खुला रखने में मेरी हर तरह से मदद की है। उम्मीद है कि इसका कोई मुस्तकिल हल निकलने तक ये सब ऐसे ही जारी रहेगा। Some of the restaurants are kind of starting to graduate. कुछ रेस्टोरेंट्स अपने पांव पर फिर से खड़े हो रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने हमें कहा है कि आपकी मदद का शुक्रिया, अब हमारा काम चल पड़ा है, आप उन्हें मुलाजमत दें जिन्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। लिनोरा स्ट्राडा को उस वक्त का इंतजार है जब वो दोबारा से बेकिंग शुरू कर सकेंगी। मैट डिबल के साथ सादिया ज़ेबरांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका। View 360 के शोज के अलावा दीगर वीडियोस आप देख सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। एक स्याह फाम अमरीकी जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस की तहवील में हलाकत पर मुल्क भर में पुलिस के स्याह फाम अमरीकियों के साथ इम्तियाजी सलूक पर एहतजाज में जनूबी एशियाई डॉक्टर्स भी शामिल हो गए हैं। अमेरिका में पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर्स की सबसे बड़ी तंजीम अपना ने इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाली दूसरी तंजीमों के साथ मिलकर एक रैली का एहतमाम किया। हमारे साथी अंशुमन आप्टे ने इस रैली के शुरका से उनके मुतालिबात जानने की कोशिश की। बॉस्टन शहर की मशहूर पब्लिक लाइब्रेरी के सामने जमीन पर डाई इन या मरने वाले का रूप धारे ये मुजाहरीन जॉर्ज फ्लॉयड की वो हालत पेश करना चाहते हैं जो उनकी एक पुलिस ऑफिसर के घुटने तले तकरीबन 9 मिनट तक थी। मुजरिमों को काबू में लाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इस चोक होल्ड या गला दबाने की तकनीक से जॉर्ज सांस नहीं ले पाए और उनकी मौत हो गई। व्हाइट कोट्स फॉर ब्लैक लाइव्स नाम की इस रैली को पाकिस्तानी अमेरिकी डॉक्टर्स की तंजीम एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ पाकिस्तानी डिसेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका या अपना के न्यू इंग्लैंड चैप्टर अपने ने ऑर्गेनाइज किया था। हम डॉक्टर्स हैं और अगर डॉक्टर्स हैं हमारे लिए सबके लिए कंसिडरेशन होनी चाहिए, वदर ये जॉर्ज फ्लॉयड हो, वदर ब्लैक्स हों, वाइट्स हों, ब्राउन हो। और जब ये इंसिडेंट देखते हैं जॉर्ज फ्लॉयड की तरह पर, पता चलता है कि इक्वालिटी यहाँ पर ये नहीं है जो बात की जाती है। इस एहतिजाज में पाकिस्तानी डॉक्टर्स के साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ न्यू इंग्लैंड, पार्टी फॉर सोशलिज्म एंड लिबरेशन और बॉस्टन पब्लिक लाइब्रेरी एम्प्लॉइज यूनियन जैसी दूसरी तंजीमों के नुमाइंदे भी शामिल हुए। कोरोना वायरस के खदशे के बाइस तमाम लोगों से मास्क पहनने की अपील की गई थी। पुलिस तशद्दुद और नस्ल परस्ती के खिलाफ मुजाहिरा करने वाले इन डॉक्टर्स का कहना है कि कोविड की तरह ही नस्ल परस्ती भी एक आलमी वबा है। हार्ट अटैक से मुतासरा स्याह फाम खवातीन को आबादी के दूसरे किसी भी ग्रुप, खासतौर से सफेद फाम औरतों और मर्दों के मुकाबले में कहीं कम इलाज मिलने का इम्कान होता है।
ब्रेस्ट कैंसर या दूसरे गायनोकोलॉजिकल कैंसर के इलाज की सहूलियात में भी ये तफरीक देखी जा सकती है और ये फहरिस्त बहुत तवील है। बेसिकली you're already economically challenged, ऊपर से फिर ये पेंडेमिक आ जाए तो आपकी रेसिज्म जो है वो खुल के सामने आ जाती है कि देखिए कितनी डिस्पैरिटी है। जो लोग तो घर पे रह के खा सकते हैं वो खा रहे हैं, मगर जो लोग नहीं ले करके कमा सकते वो उनके पास दो चॉइसेस हैं, या वो खाएं ना और या वो बीमार हो जाएं। व्हाइट कोट्स फॉर ब्लैक लाइव्स रैली में शामिल एक्टिविस्ट्स सियाह फाम अमेरिकियों के खिलाफ पुलिस के तशद्दुद को सियासी नहीं बल्कि इंसानी हुकूक की नजर से देखते हैं। डेमोक्रेट्स ने बाज लिहाज से इसे सही तौर से नहीं लिया, रिपब्लिकन्स ने भी यकीनन कुछ लिहाज से इसे गलत तौर पर लिया है, इंडिपेंडेंट्स ने भी। लेकिन जिस चीज की हमें जरूरत है वो ये है कि ये सब मिलकर ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिनसे पुलिस को जिम्मेदार ठहराया जा सके। इस रैली में शामिल एक्टिविस्ट्स कहते हैं कि सियाह फाम अमेरिकियों के हुकूक की लड़ाई जुनूबी एशियाई मुल्कों के लिए भी उतनी ही अहम है जितनी कि अमेरिका के लिए। जो हमारे यहाँ ब्लास्फेमी में मारे जाते हैं पाकिस्तान में, वो अक्सर और बेशतर निचली कम्युनिटीज़ कास्ट के होते हैं। मज़हब का बहाना बना के उनके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। यहाँ की कम्युनिटी है, देसी कम्युनिटी अमेरिका में, साउथ एशियन, कि वो सामने आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये नहीं चलेगा, और वो अपनी सोसाइटी को भी कह रहे हैं। अल्टीमेटली इट्स अ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हियर एंड आखिरकार ये मसला महरूम और पसमानदा आबादी का ही है, जैसे हमारे भारत में दलित हैं। तो ये वो लम्हा है जिससे हमारे अपने मुल्कों में एक्टिविस्ट भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। पुलिस के सियाह फामों पर जुल्म के खिलाफ इस एहतिजाज में सफेद फाम अमरीकी भी बड़ी तादाद में शामिल हो रहे हैं। This is America now. ये आप यहाँ जो देख रहे हैं ये असली अमेरिका है, आज के दौर का अमेरिका। हम आगे बढ़ रहे हैं। हम इस मुल्क के आगाज से ही इसे बीमार करने वाली नस्ल परस्ती की गंदगी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। अंशुमान आप्टे, VOA न्यूज, बॉस्टन, मैसाचुसेट्स। अब हम आपको मिलवाएंगे 110 साल फ़लस्तीनी शख्स सुलेमान अबू नामूस से, जो 1948 से अब तक मुख्तलिफ पनाह गुज़ीन कैंपों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी की जानिब से फंड्स में कटौती के बायस उन्हें बेघर हो जाने का खदशा है। एक सदी से ज्यादा उम्र के दावेदार इन फलस्तीनी बुजुर्ग के मुताबिक उन्होंने कई अहम तारीखी वाक़यात देख रखे हैं, जैसे सल्तनत उस्मानिया का दौरे क़दार, फलस्तीन के लिए बरतानवी मैंडेट और 1948 में अरब ममालिक और उस वक्त की नई इसराइली रियासत के दरमियान जंग। इसी जंग के दौरान सुलेमान अबू नामूस ने अपने आबाई इलाके से फरार इख्तियार की, जिसके बाद से उनकी जिंदगी मुख्तलिफ पनाह गुज़ीन कैंपों में गुजरी। मेरा नाम सुलेमान अबू नामूस है। ताल्लुक बेरशेबा के इलाके बतीहा से है और उम्र 110 साल, क्योंकि मैंने तुर्की बरतानिया की जंग देखी जब मैं 12 साल का था। साल हर साल से खैमों में रहने के बाद अब अबू नामूस गजा के जबालिया कैंप में 3 की छत वाले घर में रहते हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी बराए फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन ने फराहम किया। यहाँ ऐसा नहीं लगता जैसे अपने घर में रहना, ऐसा लगता है कि ये आर्जी रिहाइश है जिसे किसी रोज आप छोड़ देंगे। दीगर कई फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों की तरह अबू नामूस भी अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे पर इन्हिसार करते हैं। लेकिन सितंबर 2018 से इस इमदाद में उस वक्त कमी शुरू हुई जब अमरीका ने एजेंसी को मायूस कुन हद तक नाक़िस करार देकर इस इमदाद को मुकम्मल खत्म कर दिया। मुझे गुस्सा है क्योंकि एजेंसी ने हमारी ग़ज़ाई इमदाद बंद कर दी। मेरे और फैमिली के पास जीने का कोई चांस नहीं। मुझे हेल्थ केयर सेंटर में अपनी दवा नहीं मिली। डॉक्टर ने कहा फार्मेसी से खरीद लो, लेकिन मेरे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं। इसराइल और हमास के दरमियान तनाज़े की वजह से लगभग 50 लाख फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों को कई सालों से गुर्बत और बेरोजगारी का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा अपने इमदादी प्रोग्रामों के जरिए उन्हें सेहत आमा और तालीम जैसी अहम सहूलियात फराहम करता है। बरतानिया और चीन इस वक्त एक शदीद तनाज़े में उलझे हुए हैं। ये तनाज़ा बरतानिया की जानिब से हांगकांग के कुछ शहरियों की बरतानिया नकल मकानी को आसान बनाने के मुजव्वज़ा मंसूबे से पैदा हुआ है। बरतानवी हुकूमत ने इस तजवीज़ का ऐलान चीन की जानिब से हांगकांग में नया सिक्योरिटी कानून नाफिज करने की कोशिश के जवाब में किया था। हांगकांग चीन का नीम खुद मुख्तार हिस्सा है, ताहम नाक़िदीन के मुताबिक नया कानून बीजिंग की इस हैसियत के लिए खतरनाक है। जून 2019 में लाखों मुजाहिरीन ने हांगकांग की सड़कें भर दी थीं। उनका मुतालबा था कि हांगकांग से मुल्ज़िमान की चीन को हवालगी की इजाज़त देने वाले बिल को वापस लिया जाए। आखिरकार इस कानून को तर्क कर दिया गया, लेकिन जमहूरियत हामी मुजाहिरे जारी रहे। 1 साल बाद कोरोना वायरस की आलमी वबा ने बड़ी हद तक सड़कों पर खामोशी पैदा कर दी है।
मई में बीजिंग ने एक कौमी सलामती बिल की मंजूरी दी जो नाकदीन के मुताबिक हांगकांग की सियासी आज़ादियाँ ख़त्म कर देगा, और इस खित्ते के चीफ एग्जीक्यूटिव ने, जिन्हें चीन की मरकजी हुकूमत ने मुकर्रर किया था, इस मुजव्वज़ा कानून का खैर मकदम किया। हांगकांग के अवाम एक बार फिर इस्तेहकाम देखना चाहते हैं। बरतानिया का कहना है कि ये बिल चीन और बरतानिया के उस वक्त के मुश्तरका एलामिये की वाज़ेह खिलाफ वर्जी का अक्कास है, जब 1997 में बरतानिया की तरफ से इस इलाके को चीन के हवाले किया गया था। हमने हांगकांग के अवाम से उनकी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी आज़ादी की हिफाजत के लिए एक तारीखी अहद किया है, और ये वादा चीन ने भी किया है। अब ऐसा लगता है कि बरतानिया हंगामी तौर पर इससे निकलने की पेशकश कर रहा है। बरतानिया ने हांगकांग को चीन की हवालगी से कबल हांगकांग के बाशिंदों को ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट या BNO जारी कर दिए थे। हुकूमत का कहना है कि इस वक्त करीब 3.5 लाख अफराद के पास ये पासपोर्ट हैं और 25 लाख अफराद इसको हासिल करने के अहल हैं। बरतानवी हुकूमत इन पासपोर्ट के हामिल अफराद और उनके करीबी रिश्तेदारों के लिए बरतानिया मुंतकिल होना आसान बनाने की तजवीज पेश कर रही है, जिसके साथ वो 5 साल के बाद शहरियत का वाज़ेह रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। Implicit in the British plan is the possibility that Hong Kong could lose. बरतानवी मंसूबे में शामिल होने का इम्कान ये है कि हांगकांग अपने बासलाहियत अफराद की एक खासी तादाद खो सकता है। बीजिंग के नुक्ता नजर से वो चाहते हैं कि हांगकांग अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करे, ताहम वो हांगकांग में हुनर को बरकरार रखने के लिए कोई कीमत अदा करने को तैयार नहीं है, खासतौर पर अगर वो काबिलियत भी हो, और ये बीजिंग के लिए परेशान कुन बात है। If those talents also happens to be, in quotation marks, troublemakers for Beijing. इस कानून की मंजूरी तक बरतानवी वज़रा ने हंगामी इक़दामात की तजवीज़ पेश की है ताकि BNO पासपोर्ट रखने वालों को बरतानिया में जाने की आसानी से इजाज़त दी जा सके। हांगकांग वॉचडॉग एडवोकेसी के जॉनी पीटर्स का कहना है कि ये हांगकांग को चीन के हवाले करने के बाद की पॉलिसी में सबसे बड़ी तब्दीली है। ये वाकई एक काबिल जिक्र बात है, और ये न सिर्फ नाकाबिल यकीन हद तक फरागदिली और मानखेज इमिग्रेशन शिफ्ट का इशारा है, बल्कि ये मुमकिन तौर पर चीन और बरतानवी ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली भी है। लेकिन प्रोफेसर स्टीव सांग का कहना है कि ये पॉलिसी में तफसील का फकदान है। I think the ambiguity is very much by design. मुझे लगता है कि ये इब्हाम खुद मंसूबे का पैदा करता है। बरतानवी हुकूमत ने हांगकांग को बुनियादी तौर पर जो पेशकश की है वो ये पैगाम है कि हांगकांग के लोगों को भूला नहीं गया, और चीन को ये पैगाम दिया जा रहा है कि बरतानिया इस पर खामोश नहीं रहेगा, और वो उम्मीद करते हैं कि चीन की हुकूमत इसकी हिमायत करेगी। Responses from the UK. Hopefully the Chinese government will back off. लेकिन बीजिंग ने खबरदार किया है कि बरतानवी शहरियत की पेशकश खुद 1997 के मुश्तरका एलामिये की खिलाफ वर्जी करेगी। कुछ अरसा कबल तक बरतानिया का इस फैसले से इत्तेफाक था, लेकिन चीन के हांगकांग पर नया सिक्योरिटी कानून नाफिज करने की कोशिश की वजह से लंदन का इसके बारे में अंदाज बदल गया है। हेनरी रिजवेल के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। बरतानवी दौरे हुकूमत में अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई करने के लिए वॉर लाइन के नाम से रेलवे लाइन बिछाई थी। इंजीनियरिंग का ये शाहकार 1.5 सदी गुजरने के बाद आज भी अपने मजबूत ढांचे की वजह से कायम है। अंग्रेजों ने बलूचिस्तान के बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिलों से रेल लाइन कैसे गुजारी, इसकी तफसील बता रहे हैं मुर्तजा जहरी। बलूचिस्तान में रेल का निज़ाम अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में तामीर हुआ। ये पाकिस्तान में आज मौजूद रेलवे स्ट्रक्चर का 60% है। तारीख दानों के मुताबिक अंग्रेज़ फौजी और तिजारती हिकमत अमली के तहत अफ़गानिस्तान तक रेलवे लाइन बिछाना चाहते थे। आप इससे अंदाज़ा लगाएं उस ज़माने में उस तरक्की को जो रेलवे की निस्बत थी कि अंग्रेज़ों ने जो तज्ज़िया किया वो ये कि 25,000 ऊँट 15 दिन की मुसाफत के साथ जितना सामान लेकर 15 दिन में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, एक ट्रेन जो है गुड्स ट्रेन वो एक दिन में उतना सामान लेकर के वहां पहुंच सकती है। अब आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो गया होगा। डॉक्टर इरफान अहमद बेग ने इस कदीम रेलवे लाइन की तारीख से मुतालिक 1.5 सदी की रेल के नाम से एक किताब लिखी है। उन्होंने बहुत अहम काम किया और इसकी अहमियत आज भी है। और अब एक बार एक ज़माना ऐसा आया
کہ ریلوے کی اہمیت کم ہو گئی تھی، لیکن اب دوبارہ اس کی اہمیت آ رہی ہے، تو دوبارہ اس کا پوری دنیا میں سروائیو ہو رہا ہے، اور بلوچستان میں اس کی اہمیت میرے خیال بہت بڑھ جائے گی۔ ڈاکٹر عرفان کے مطابق انگریزوں کو سبی تک ریلوے لائن بچھانے میں تو مشکل پیش نہیں آئی، مگر بلوچستان کے علاقے بولان سے چمن تک کے بلند و بالا پہاڑی سلسلوں نے انجینئرز اور مزدوروں کا خوب امتحان لیا۔ صرف 900 اونٹ تو جب بولان میں ریلوے لائن بچھائی جا رہی تھی تو 900 اونٹوں پر روزانہ کھانا یا راشن اور سامان جو ہے وہ مزدوروں کے لیے آتا تھا، جو مزدوروں کی تعداد کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوسرا شاہکار شیلا باغ کی ٹنل تھی، جس کے انجینئر نے جو چاہ رہا تھا کہ وہ درمیان میں جو ملیں وہ ایک دونوں طرف سے شروع کیا تھا، اور وہ ٹائم پہ نہیں مل سکا تو اندیشہ ہوا اس شاید غلط ہو گیا تو اس نے خودکشی کر لی۔ اس زمانے میں بولان کے دشوار گزار پہاڑی علاقے میں ریلوے ٹریک بچھانے پر فی میل 3 لاکھ روپے سے زائد خرچ ہوئے۔ اس دور کے انجینئرز نے ریلوے لائنوں، پلوں، ریلوے اسٹیشنز اور سرنگوں کی تعمیر پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ نظام آج بھی قائم اور قابل استعمال ہے۔ تاریخ دانوں کا یہ ماننا ہے کہ بلوچستان میں برٹش دور حکومت میں قائم کیا گیا ریلوے کا یہ نظام اس قدر مضبوط ہے کہ اگر اس کی دیکھ بھال جاری رکھی جائے تو اس نظام کو مزید بھی چلایا جا سکتا ہے۔ مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، بولان، بلوچستان۔ انگریزی میں کہا جاتا ہے all is well that ends well، تو آج کے شو کی آخری رپورٹ میں بھی خوشی کا تاثر ہے۔ فلوریڈا کی ایک ویڈیو پروڈکشن کمپنی کو جب کرونا وائرس کے دوران اپنا کام بند کرنا پڑا تو اس نے بحران کی اس صورتحال میں لوگوں کی مدد کے لیے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو کیسے استعمال کیا، یہ جاننے کے لیے آپ کو دیکھنی ہوگی یہ رپورٹ۔ جان اولیوا کو کرونا وائرس کے پھیلنے کی وجہ سے مارچ میں اپنی ویڈیو پروڈکشن کمپنی بند کرنا پڑی۔ یہ مکمل لاک ڈاؤن جیسا تھا، ہر ایک کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ کاروبار بند کریں اور گھر میں رہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ تباہ کن تھا۔ ریاست فلوریڈا کے شہر فورٹ لادرڈیل میں جب ان کا کاروبار بند ہوا تو جان اور ان کی بیوی لوری دوسروں کی مدد کے لیے پرعزم تھے۔ Votre maison est votre seul espace dans le monde entier. جان اور ان کا عملہ گھوڑوں کے ایک فارم پر گئے جہاں انہوں نے سماجی دوری کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوم ڈیکور بزنس کے بارے میں ایک مفت کمرشل بنایا جو ایک چھوٹے کاروبار کے مالک کے لیے تھا جس کا سٹور بند تھا۔ ویڈیو بہت خوبصورت بنی اور ہمیں امید ہے کہ اس کی وجہ سے اعلیٰ درجے کے گاہکوں کو راغب کرنے میں مدد ملے گی۔ جیسے ہی یہ وائرس پھیلا چرچ میں مذہبی رسومات کو منسوخ کر دیا گیا، لیکن جان کی پروڈکشن کمپنی نے آن لائن ویڈیو سٹریم کی سہولت فراہم کر کے کیتھولک چرچ کمیونٹی کی مدد کی تاکہ لوگ آن لائن عبادت کر سکیں۔ دراصل چرچ کی طرف سے ہم سے رابطہ کیا گیا تھا، انہوں نے ہم سے پوچھا تھا کہ کیا ہم ایسٹر اور گڈ فرائیڈے کے موقع پر مذہبی رسومات ریکارڈ کریں گے، اگر ہمیں معاوضہ نہ بھی ملے پھر بھی ہم کمیونٹی کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے اسکول بھی بند ہو گئے اور ہائی اسکول سے گریجویشن کی تقریبات کو منسوخ کرنا پڑا، لہٰذا جان نے طلبہ کے لیے ایک ورچوئل گریجویشن ویڈیو بنائی۔ بچوں نے ہمیں ویڈیو کلپس بھیجی جس میں وہ گریجویشن واک کر رہے ہیں، ان میں وہ اپنے گریجویشن کا لباس، ٹوپی اور گاؤن پہنے ہوئے چل رہے ہیں۔ یہ براہ راست گریجویشن جیسا تو نہیں، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ایک یادگار کے طور پر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ کرس سمکنز کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ یہ تھا آج کا ویو 360 شو، مجھے فائزہ بخاری کو اگلے شو تک کے لیے اجازت دیجیے۔